We will first solve this question. Even if you have already done it, please stay with me. That means ABCD is a piece of paper like this, imagine it like this, and then there is a line running like this. So that will be the flux through the whole cylinder. Now we have to understand. तो ये dx by d थीटा लिखा, d थीटा को इधर कर दिया, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन क्या बता रहा है मुझे? दोनों के सेंटर थोड़े से शिफ्टेड है, तो सोच के देखो, ये भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है. हेलो स्टूडेंट्स, I hope all of you are doing well. Today we will basically consider two problems in electrostatics. The problem that is behind me is actually a problem directly picked up from JEE Advanced question paper. If I am not mistaken, this question appeared in 2016, I guess. So we will first solve this question. Even if you have already done it, please stay with me, because we will solve it by two possible methods. And then again I will take up a problem which is quite common. Most of you have done it in some form or other, but we will explore into that problem slightly deeply. We will try to dig into that slightly deeply, and at the end we will find that we have solved a rather difficult question. So please be with me throughout the session. Okay. So this is the first question that as I said, has been picked up directly from JEE Advanced question paper. The question says that an infinitely long uniform line charge distribution, distribution of charge per unit length lambda lies parallel to the y-axis in the yz plane at z is equal to root 3 by a. So there is a surface drawn here, as you can see. This is x-axis, this is x-axis, this is y-axis. The surface ABCD lies in the xy plane, and then this is z-axis. So parallel to this xy plane, there is a line which intersects the z-axis at z is equal to root 3 by 2a. That means ABCD is a piece of paper like this, imagine it like this, and then there is a line running like this. This infinitely long line charge has lambda coulomb charge per meter length on it, right? Then the question says, if the magnitude of the flux of the electric field through the rectangular surface ABCD is lambda L by n epsilon naught, then value of n. Basically the question is asking, if this is line charge of infinite length, and below this line charge at a depth of root 3 by 2a, and there is a surface, rectangular surface having side length a and L, then what will be flux of electric field through this rectangular surface? That is the whole question, right? We can solve this question by way of direct integration. That is one thing that one can do. And then if you understand that electric flux through a surface is basically count of number of field lines passing through that surface, and you can do some imaginative thinking, you can very easily solve this question. So what can be done? Let us look at it. आप में से जो लोग अभी तक ट्राई नहीं किया या भूल गए हैं, लगता है फिर से ट्राई करना चाहिए, कर लीजिए ना, रुक के ट्राई कीजिए. So this is the same diagram here, I have copied it. Now imagine a cylindrical surface like this. Just think of a cylindrical surface like this. This cylindrical surface is touching this surface ABCD. ये जो ABCD plane surface है, ये line charge है. Line charge is along the axis of the cylinder. This line charge is along the axis of the cylinder. Imagine a cylinder that just touches this surface, right? Which means radius of the cylinder. This is the axis of the cylinder. So radius of the cylinder is nothing but root 3 by 2a, if you can imagine that. This is the axis of the cylinder. There is a cylinder which is just touching through the surface. So radius of this cylinder is nothing but root 3 by 2a. Just imagine a cylinder like this. Now all the electric field lines that are starting or that are originating from this line charge, this is a positively charged line charge, let us say.
So all field lines that originate from this line charge, they are going to pass through this cylindrical surface. Actually the field lines will be radial, as all of you must be knowing. If I could draw some of them, these are the field lines. Field lines are all radial due to this cylindrical line charge. So this is how the field lines will look like. This is a cylinder, imagine, rather this is a cylinder, this is a cylinder, and this is the line charge along the axis. So all field lines due to this infinitely long line charge will be actually radial. Radial means they will be perpendicular onto the surface of the cylinder. I have just shown the field lines here. Similar field lines are here also, throughout the length, everywhere. Radial field lines are there, right? Now, you all know, using Gauss law, that what will be flux through this cylindrical, curved cylindrical surface. It will be equal to Q by epsilon naught, where Q is the charge enclosed inside the surface. If you consider a cylinder of certain length, let us say L, or any other length B, if you consider a cylinder of length B, then the charge enclosed inside that cylinder will be lambda into B. So Q by epsilon naught will be flux through the curved cylindrical surface. Why I am saying curved cylindrical surface? Because actually Gauss law is applicable only for closed surfaces. We cannot apply Gauss law for a surface like this. We have to consider these lids also, the caps of the cylinder. The cylinder must be a closed surface. But in this particular case, there will be no flux through the circular caps. Can you see that? There will be no flux through this circular surface. All field lines are parallel to this surface. Field lines always are parallel to this particular surface, but all field lines penetrate perpendicularly through this curved surface of the cylinder. So through the curved surface there will be flux, but through the flat surfaces there won't be any flux. But if you consider the whole cylinder as a closed surface, the total flux through the cylinder will be Q by epsilon naught, where Q is the charge present inside the cylinder, which is length of the cylinder, B, let us say, so B into lambda. So that will be the flux through the whole cylinder. Now we have to understand that what amount of flux will pass through this rectangular surface. What amount of flux will pass through this rectangular surface? अभी भी जब भी आपको लगे, आप बच्चों को जब भी ऐसा लगे कि हमें रुक जाना चाहिए, हमें खुद से ट्राई करना चाहिए, तुरंत रुक जाइएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा. देखिए, ये ड्राइंग जरा इमेजिन कीजिए आप. फील्ड लाइंस ही हैं. फील्ड लाइंस मैंने हटा दी थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी. फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं. एक लाल वाली फील्ड लाइन है, ये भी लाल वाली फील्ड लाइन है, एक फील्ड लाइन ऐसी भी है, एक फील्ड लाइन ऐसी भी है, एक फील्ड लाइन ऐसी भी है. तो ये जो फील्ड लाइंस हैं, ये वाली, ये आप क्या ध्यान से देख सकते हैं कि इस रेक्टेंगुलर सरफेस के थ्रू पास नहीं होंगी. वही सारी फील्ड लाइन इस रेक्टेंगुलर सरफेस के अंदर से पास होंगी जो ऐसी कुछ जा रही है. ये जो डार्क दो रेड लाइंस हैं, इन लाइंस के बीच में जो फील्ड लाइंस है वही इस रेक्टेंगुलर सरफेस से पास होंगी. हाँ, यहाँ हर जगह ऐसी फील्ड लाइंस होंगी और वही सभी फील्ड लाइंस इस रेक्टेंगुलर सरफेस के अंदर से पास होंगी. इस चीज को इमेजिन करना ही इस क्वेश्चन में सबसे डिफिकल्ट है. इसको 2 डायमेंशनल डायग्राम में कन्वर्ट कर देता हूं, आप आसानी से समझ पाएंगे. सपोज इस पूरे डायग्राम को हम इधर से देख रहे हैं, ठीक है, हम इधर से देख रहे हैं. मुझे एक लाइन BC दिखाई दे रही है, मैं इस लाइन BC को ड्रॉ कर देता हूं. ये रेक्टेंगुलर सरफेस कैसा है? अंदर की तरफ जाता हुआ, ऐसा रेक्टेंगुलर सरफेस. ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, इसकी BC साइड हमें दिखाई दे रही है. इस सरफेस के BC के ठीक बीच वाले इस पॉइंट का नाम बातचीत में आसानी के लिए M रख दे रहा हूं. ये M के ठीक ऊपर ऐसे लाइन चार्ज जा रहा है. मैं इधर से देख रहा हूं तो लाइन चार्ज अंदर की तरफ या बाहर की तरफ आता हुआ दिख रहा है. उसको मैं यहां पे ऐसे दिखा दे रहा हूं, प्लस, मतलब लाइन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज वाला लाइन चार्ज ऐसे है और ये अंदर की तरफ है ऐसे. ठीक है, ये एक्चुअली ये प्लस जो मैंने बनाया ये वाला पॉइंट हो गया. अब यहां से B और C को मैंने जोड़ दिया, ये B और C को मैंने जोड़ दिया. ये बिल्कुल ये ट्रायंगल बन गया. देखिए ध्यान से, ये ट्रायंगल बन गया.
अब इस लाइन चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं, फील्ड लाइंस ऐसे भी जा रही हैं, 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 ये भी फील्ड लाइन है, ये भी फील्ड लाइन है, ये भी फील्ड लाइन है। इस लाइन चार्ज से जितने भी फील्ड लाइंस एमिट हो रहे हैं, उनमें वो फील्ड लाइन जो इस रीजन के अंदर है, इस एंगल के अंदर है, वही सारी इस सरफेस के थ्रू पास होंगी। तो बच्चों इमेजिन करना, जरा ठीक से इमेजिन करना, ये एक्चुअली सॉलिड एंगल जैसी कोई चीज यहां सोचने की जरूरत नहीं है। लाइन चार्ज ऐसे लॉन्ग लाइन चार्ज है, और इस लाइन पे यहां पे भी फील्ड लाइंस बिल्कुल इस प्लेन में, मेरे हाथ के प्लेन में, इस हाथ के प्लेन में सब के सब फील्ड लाइंस जो हैं वो ऐसे रेडियल है, और यहाँ पे भी एक सरफेस इमेजिन करोगे तो फील्ड लाइन सब के सब ऐसे रेडियल हैं। तो हमें सिर्फ ये सोचना है कि एंगल कितना बड़ा है। इसके लिए डेटा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए ये जो हाइट है ये √3/2a है, ये √3/2a है, और ध्यान से देखेंगे तो ये वाला a/2 है, बिकॉज दिस होल लेंथ इज a/2। So if I call this angle as theta, then tan of theta will be this length by this length 1/√3, which means theta is 30 degree, which means this whole angle is 60 degree. This angle is 60 degree. Can you see that? So if this whole thing is 360 degree, so all field lines which are originating from this line charge, they get evenly spread on a circular cross section of 360 degree angle, isn't it? And out of those, the lines which fall inside this 60 degree angle, they will pass through this surface. इस surface से वही पास होंगे जो इस 60 डिग्री एंगल के अंदर से लाइंस निकल रही हैं। फिर से देखिए, लाइंस यहाँ से ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं। तो इस सरफेस से तो वही इंटरसेक्ट करेंगी जो इस 60 डिग्री के अंदर पे लाइंस होंगी। तो 360 डिग्री पे अगर n लाइंस है तो 60 डिग्री पे कितनी हुई? 1/6 ऑफ दैट। इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि इस सिलेंडर से जितनी भी लाइंस निकलेंगी, अगर सिलेंडर की लेंथ को हम जस्ट इसके बराबर ले लें, अब हाँ किसके बराबर? L के इक्वल, इस विड्थ के बराबर सिलेंडर अगर हम इमेजिन करें, तो उस सिलेंडर से जितनी भी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसकी 1/6 इस सरफेस से पास होंगी, 1/6। तो उस सिलेंडर के थ्रू जो फ्लक्स है, अगर सिलेंडर की ये वाली लेंथ हम L ले लें, तो सिलेंडर के थ्रू जो फ्लक्स है उसकी 1/6 फ्लक्स होगी मेरे उस फ्लैट सरफेस के थ्रू। तो पूरे सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स कितना है? आंसर है, अगर L लेंथ का सिलेंडर लेंगे, L लेंथ की लाइन उसके अंदर है, तो टोटल चार्ज इतना है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ है, ये पूरे सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स है, इसका 1/6 यही हमारे फ्लैट सरफेस के थ्रू फ्लक्स है, λL/6 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम पीछे जाके देखें तो क्वेश्चन में पूछा गया है द फ्लक्स इज λL/n एप्सिलॉन नॉट, तो n की वैल्यू क्या है? ऑब्वियसली n = 6। जो दूसरा मेथड, मान लीजिए हमें ये नहीं समझ में आया एग्जाम हॉल के अंदर, तो नॉर्मल जो सोच हो सकती है बहुत सारे बच्चों की यहाँ पे, कि हम इंटीग्रेशन करके किसी सरफेस के थ्रू फ्लक्स लिख दें, वो अप्रोच भी चलेगा, आप वो भी कर सकते थे कुछ ऐसा। फिर से समझिएगा, ये जो सरफेस है ये BC दिखा रहा हूँ, इसे BC, ये BC, हम इस सरफेस BC में ऐसे पतले पतले स्ट्रिप्स इमेजिन करें ऐसे, और हर स्ट्रिप के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स लिख के हमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमें इस पूरे सरफेस के थ्रू फ्लक्स पता चल पाएगा। तो बच्चों ये कैसे किया जा सकता है, जरा सोचते हैं। मान लो, फिर से समझना मेरी बात को, डायग्राम आसान बने इसलिए मैं इधर से देख रहा हूं, BC को फिर से यहां पे दिखा देता हूं। BC मान लो ऐसा है, बिल्कुल इसके मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट का नाम M रख देता हूं, मिड पॉइंट से √3/2a हाइट पे ये लाइन चार्ज है, ऐसा है लाइन चार्ज। मैं इधर से देख रहा हूं ड्राइंग को, राइट। इस लाइन चार्ज की वजह से इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स लिखना है। सरफेस कैसा है? ये BC है, BC जिसकी लेंथ है A और L डेप्थ है उसकी अंदर की तरफ, हम इधर से देख रहे हैं, BC L डेप्थ है, इसके ऊपर लाइन चार्ज ऐसे जा रही है। तो मैं जब ऐसे देखता हूं तो ये लाइन चार्ज का प्लस चार्ज दिख रहा है √3/2a हाइट पे, ये BC है और L डेप्थ की सरफेस है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। अब अगर हम इस सरफेस के थ्रू फील्ड का फ्लक्स लिखना चाहते हैं
तो हमें ऐसे प्रोसीड करना चाहिए। मान लिया पूरे इंटीग्रेशन को हम एक्चुअली एक्स के टर्म्स में या इस थीटा के टर्म्स में सेटअप कर सकते हैं। थीटा के टर्म्स में ज़्यादा आसान पड़ेगा शायद, समझिएगा मेरी बात को। इस फिक्स पॉइंट एम से एक्स डिस्टेंस पे ये जगह लीजिए, यहाँ पे dx विड्थ का एक स्ट्रिप इमेजिन कीजिए, बहुत ही छोटा dx, आपको साफ दिखाई पड़े इसलिए इतना बड़ा बनाया। ये जो स्ट्रिप है इसकी विड्थ को हम इस एंगल के टर्म्स में भी कह सकते हैं कि इसकी एंगुलर विड्थ है डी थीटा। कैसी स्ट्रिप है फिर से समझ लेते हैं एक बार। ये लाइन चार्ज है, ठीक है, ये BC है। ये जो लाइन चार्ज है यहाँ से ये लाइन चार्ज का ये टिप दिख रहा है आपको, ये सर्कल लाइन का क्रॉस सेक्शन है लाइन चार्ज का, मान लीजिए। यहाँ से एक सर्टेन एंगल थीटा पे, इस वर्टिकल से थीटा एंगल पे, यहाँ पे हम dx विड्थ की ऐसी स्ट्रिप ले रहे हैं। आई होप कि तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो dx विड्थ की स्ट्रिप है इसके थ्रू फ्लक्स लिखने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज ध्यान दीजिए, लाइन चार्ज इनफाइनाइट लेंथ का है, इसकी वजह से किसी भी लोकेशन पे, यहां जैसे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियल ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है वो तो हम सभी जानते हैं, λ/2πε0r, जहां r ये वाली लेंथ है, ये ब्लैक लाइन की लेंथ है कि नहीं। इनफाइनाइट लेंथ के लाइन चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल λ/2πε0r होता है। तो भाई ये dx बहुत ही छोटा सा स्ट्रिप है, बहुत पतला, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, आंसर है λ/2πε0r। तो ये जो सरफेस मैं दिखा रहा हूं, स्ट्रिप दिखा रहा हूं, इस स्ट्रिप के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, आंसर है ये जो स्ट्रिप है, ऐसा इमेजिन करो बच्चों थोड़ा, ये dx विड्थ की जो स्ट्रिप है, यहाँ हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लाइन चार्ज से रेडियल बिल्कुल इस डायरेक्शन में ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हर जगह सेम है इस पूरे स्ट्रिप पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, तो ये जो स्ट्रिप ले रहे हैं इसका एरिया वेक्टर तो वर्टिकल होगा, ध्यान से देखिए, ये जो एरिया वेक्टर होगा, ये नहीं दिखा रहा हूं यहाँ पे आप, अच्छा चलो दिखा देता हूं, ये एरिया वेक्टर है dA ऐसे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, यही एंगल है थीटा, ये पैरेलल है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है थीटा। तो जो उस स्ट्रिप के थ्रू छोटा सा फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड λ/2πε0r, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप विच इज इक्वल टू L इंटू dx ये वाली विड्थ और L ये वाली विड्थ, dx इंटू L, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल उसका कॉस। अब इस इंटीग्रेशन को किसी एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में लिखना होगा, तब तो इंटीग्रेशन करेंगे हम इस डायग्राम में अगर इस चीज को दिखाना चाहें तो मैं कह रहा हूं कि ऐसी हमने एक स्ट्रिप ली है, ऐसी, यहां से x डिस्टेंस पे ये dx विड्थ की स्ट्रिप है, ये dx है, ये डिस्टेंस x है, ऐसा, ठीक है। अगर इस लाइन चार्ज से दिखाऊं तो इस लाइन चार्ज से ये वाली लाइन मैंने बनाई, ये पॉइंट M है, और यहां से ऐसे थीटा एंगल पे ये स्ट्रिप है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो ये फ्लक्स हो गया उस पतले से स्ट्रिप के थ्रू, पर इसको एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करना होगा। लेट अस से कि हम वेरिएबल जो लेंगे वो थीटा है, तो x को भी, dx को भी थीटा के टर्म्स में लिखना होगा, d थीटा के टर्म्स में, या r भी नहीं चलेगा। हाँ, ये एक फिक्स डिस्टेंस है, तो आसानी से आप इस ट्रायंगल को देख के समझ सकते हैं, दिस अपॉन r इज cos थीटा, देयरफॉर r इज √3/2a डिवाइडेड बाय cos थीटा विच मींस sec थीटा। ये r की जगह पे आप लिख सकते हैं, आप x की जगह पे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, x बाई दिस इज tan थीटा, कहीं अगर x है तो उसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं। और x और dx और d थीटा में क्या रिलेशन है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, dx बाई डी थीटा इज √3/2a sec स्क्वायर थीटा, देयरफॉर dx इज √3/2a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। देखिए dx और d थीटा में रिलेशन को आपको मन में ऐसे बोलना चाहिए कि जब ये एंगल थीटा है तो x की वैल्यू है √3/2a tan थीटा। अब अगर हम
थीटा को डी थीटा बदलेंगे, थीटा में चेंज किया डी थीटा का, तो बाय व्हाट अमाउंट एक्स विल चेंज, इट विल चेंज बाय डी एक्स। थीटा में चेंज डी थीटा का हुआ तो एक्स कितना बदला, ये जानने के लिए एक्स और थीटा के रिलेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये डी एक्स बाई डी थीटा लिखा, डी थीटा को इधर कर दिया, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन क्या बता रहा है मुझे, ये एक्सप्रेशन कह रहा है कि इफ एक्स इज रिलेटेड टू थीटा थ्रू दिस इक्वेशन, then if you change a small change in theta, if you make a small change in theta by d theta, if you change theta by d theta, then corresponding change in value of x is given by this. x की वैल्यू में बदलाव जो होगा जब थीटा को तुम थोड़ा सा बदलते हो, वो इस इक्वेशन से दिया जाता है। अब आपके पास सभी चीजें हैं जिसको आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। देखो ये लैम्डा, ये l, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब तो फिक्स नंबर है, इनको ऐसे लिख देता हूं, ये कॉस थीटा और ये dx, dx की जगह पे ये लिखना होगा, क्या लिखोगे तुम, √3 बाई 2a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कॉस थीटा है। अब बेटा जो यहां r है नीचे में, उस r की जगह पे क्या लिखोगे तुम, √3 बाई 2a इंटू सेक थीटा। देखिए आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब यहां ये सेक थीटा कैंसिल हो गया, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी 1 हो गया, तो बचा क्या, क्या बचा आपके पास, ये √3 बाई 2a, √3 बाई 2a भी कैंसिल हो गया, तो लैम्डा l बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा l बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल, सेक सेक सब, सिर्फ डी थीटा बचा, यही आपका डी फाई। ठीक, अब टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा बच्चा पार्टी, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए मुझे यहां से लेकर यहां तक जितने स्ट्रिप है सभी में फ्लक्स को जोड़ना पड़ेगा, और उसको डबल कर दूंगा तो इधर वाले भी इंक्लूड हो जाएंगे, ऐसा कर लेते हैं। तो थीटा को मैं 0 से लेके यहां तक बदलूंगा, यहां तक, यहां कितना था, अभी थोड़ी देर पहले कहीं कैलकुलेट किया था मैंने कि ये एंगल 30 डिग्री था। ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन मैं करने जा रहा हूं, थीटा चेंजिंग फ्रॉम 0 टू 30, मतलब यहां से यहां पहुंच गए, उसको डबल कर देंगे तो इधर भी इंक्लूड हो जाएगा। इसलिए जो टोटल फ्लक्स होगा, डबल कर देता हूं, लैम्डा l 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा 0 टू पाई बाई 6, 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6, तो ये बन गया हमारा लैम्डा l 6 एप्सिलॉन नॉट, पाई बाई 6, पाई कैंसल्स, 2 कैंसल, 6, यस, सो दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड कि आप सिचुएशन को इमेजिन कर पाएं और इस तरह का इंटीग्रेशन आपने कभी तो लाइफ में किया। तो इस तरह का जो इंटीग्रेशन है, जैसा इंटीग्रेशन यहां पे सेटअप किया गया, इस तरह का इंटीग्रेशन प्रिसाइजली आपने 2 में से किसी एक जगह पे किया होगा, मैं आपको याद दिला देता हूं। या तो आपने ऐसे सवाल बनाए होंगे कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, हम गॉस लॉ नहीं जानते, कूलम्स लॉ यूज करके यहां पे ऐसी सिचुएशन में गॉस लॉ जानते भी हैं तो क्या हो गया, मान लो फाइनाइट लेंथ की लाइन चार्ज है, इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं लेते हैं, फाइनाइट लेंथ की लाइन चार्ज है, ये लाइन चार्ज है, इसकी वजह से यहां फील्ड निकालो। या मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन में आपने पढ़ा होगा कि एक करंट कैरिंग वायर है एल लेंथ की, यहां से यहां तक, इससे सर्टेन डिस्टेंस डी पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ये एंगल अल्फा बीटा दिए हुए, फिक्स लेंथ की लाइन। तो इस केस में भी इंटीग्रेशन मोटा मोटी कुछ इसी तरह से सेटअप होता है। तो आपने अगर ये रूटीन क्वेश्चन किए हुए हैं तो आपको ये इंटीग्रेशन अटपटा नहीं लगेगा IIT के एग्जाम हॉल में। हाँ, थोड़ा इमेजिनेशन मुश्किल हो सकता है इस क्वेश्चन में, नो डाउट, नो डाउट अबाउट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि इसको देखकर सभी लोग वीडियो बंद कर देंगे कि ये तो हम जानते हैं। नहीं जी, आप पूरा वीडियो देखिए ध्यान से, आपको कुछ मिलेगा जो आप नहीं जानते, हो सकता है, देखते तो चलिए। ओके, ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, सभी समझ गए। ये पूरा स्फेरिकल वॉल्यूम में चार्ज डेंसिटी है रो कूलम पर क्यूबिक मीटर, बस एक कैविटी है इसके अंदर, वो भी स्फेरिकल शेप की है। कैविटी है मतलब उस रीजन में चार्ज नहीं है, ये जो रीजन है इसमें चार्ज नहीं है। पॉइंट ए जो है इस पूरे बड़े स्फीयर का सेंटर है, पॉइंट बी कैविटी रीजन का सेंटर है,
मान लो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है एल, ये तुम्हें गिवन है एल, दोनों स्फीयर के सेंटर के बीच का डिस्टेंस गिवन है। क्वेश्चन फिर से क्या है सुन लो। एक स्फेरिकल वॉल्यूम में रो कूलम पर क्यूबिक मीटर चार्ज है। उस स्फेरिकल वॉल्यूम के अंदर एक स्फेरिकल कैविटी है। कैविटी मींस उसमें चार्ज नहीं है, यहां छोड़कर बाकी हर जगह रो कूलम पर क्यूबिक मीटर वॉल्यूम चार्ज है। कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये हमें बताना है। ये रूटीन सा क्वेश्चन है जिसको हम कुछ इस अंदाज में सोच के करते हैं। ये मैंने दिखाया है एक डायग्राम, देखिए ये जो ब्लू कलर का रीजन है इसमें रो कूलम, पॉजिटिव रो कूलम पर क्यूबिक मीटर चार्ज है। जो व्हाइट कलर का रीजन है उसमें कोई चार्ज नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन है। इसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो सिस्टम है दिस इज कॉम्बिनेशन और सुपरपोजिशन ऑफ टू थिंग्स। आप इमेजिन कीजिए कि एक स्फेरिकल वॉल्यूम में पूरे में ही चार्ज है रो कूलम पर क्यूबिक मीटर। ब्लू मतलब प्लस रो कूलम पर क्यूबिक मीटर चार्ज है, ऐसा इमेजिन कीजिए। और ये इमेजिन कीजिए, ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है कि ये माइनस रो कूलम पर क्यूबिक मीटर चार्ज है। आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि एक स्फेरिकल वॉल्यूम में प्लस रो कूलम पर क्यूबिक मीटर चार्ज है, एक स्फेरिकल वॉल्यूम में माइनस रो कूलम पर क्यूबिक मीटर चार्ज है। ये जो स्फीयर है लाल रंग का, इसका साइज बस इस व्हाइट वाले स्फीयर के बराबर है। अब अगर इसके ऊपर इसको ओवरलैप कर दे, सुपर इम्पोज कर दे, मतलब ऐसा सोचो मन में कि माइनस रो माइनस रो माइनस रो तो था ही पूरे में, इतनी दूर में प्लस रो तो था ही पूरे में, इतनी दूर में माइनस रो भी ठूंस दे एक तरह से। प्लस रो तो था ही, माइनस रो भी लाके उतने से रीजन में आप सुपर इम्पोज कर दो, कुछ ऐसा। ये माइनस रो आके उसके ऊपर बैठ गया। तो नीला वाला जो था, फिर से देखो नीला तो है ही, नीला तो है ही यहां पे, नीला मतलब प्लस रो। अब माइनस रो को भी लाके वहां पे रख दो, तो अब ये जो लाल रीजन दिख रहा है एक्चुअली वो लाल नहीं, व्हाइट हो गया। व्हाइट मतलब कैविटी, वहां पे कोई चार्ज नहीं है। प्लस रो और माइनस रो दोनों प्रेजेंट है, मतलब वहां पे कोई चार्ज नहीं है। तो ये जो सिस्टम है इसको हम कैसे सोच सकते हैं? ये सिस्टम एक्चुअली में दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। वो कौन से दो चीजें हुई? एक, इसको सोच सकते हैं कि दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। पूरे में प्लस रो चार्ज है और इतने हिस्से में माइनस रो चार्ज है, दोनों को ओवरलैप कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ऐसे ही सोचना है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस प्लस दिस। तो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए आपको सोचना है कि सिर्फ ये होता तो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती। फिर सोचना है कि सिर्फ ये होता, मतलब इतनी दूर में ही चार्ज होता और कहीं चार्ज नहीं, तो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती। और उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन करना है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देख लो कैसे मैं बोल रहा हूं। ये प्लस रो प्लस रो प्लस रो, पॉइंट पी पर इस प्लस रो की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लिखना है हमें। ठीक, अब हमें यह सोचना है कि अगर यहां पे माइनस रो चार्ज होता, थोड़ा मैंने पी बाहर बना दिया, सॉरी, इसको एक सेकेंड भाई, जस्ट 1 मिनट। आपको पहले यह सोचना है कि इस पॉइंट पी पे इस प्लस रो की वजह से फील्ड क्या है, और फिर यह सोचना है कि उसी पॉइंट पी पे ये लाल माइनस रो की वजह से फील्ड कितना है। अब ये प्लस रो और माइनस रो दोनों मौजूद है, तो एक्चुअली तो ये कैविटी है, लेकिन कैविटी को हम कैसे सोच रहे हैं कि नीला वाला चार्ज भी था, लाल वाला भी था। तो ये जो दोनों फील्ड है इसको जोड़ दीजिए, वेक्टर एडिशन कर दीजिए, आपको इस पॉइंट पे रिजल्टेंट फील्ड मिल जाएगा। यही स्ट्रैटेजी हमें अपनानी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बातचीत में आसानी के लिए मैंने एक ट्रायंगल बना दिया है। पॉइंट ए यहाँ का सेंटर है, पॉइंट बी इस कैविटी रीजन का सेंटर है, और पॉइंट पी कैविटी के अंदर गिवन पॉइंट है। तो बार बार इसके अंदर ड्राइंग नहीं बना के हम ए बी पी को ऐसे बाहर ड्रॉ कर लेते हैं। ए और बी के बीच की दूरी एल है, ये गिवन है। ठीक है, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम फील्ड लिखते हैं। आप सभी को याद होगा आई होप, कि अगर एक पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्म वॉल्यूम है जिसमें रो कूलम पर क्यूबिक मीटर चार्ज है, तो सेंटर से किसी डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड, और इसका मैग्नीट्यूड होता है रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ऐसा होता है, शायद आप सभी को याद है कि सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली बदलती है। बिल्कुल वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। अगर सिर्फ पॉजिटिव 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 चार्ज ही होता, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर सिर्फ यहाँ पे अगर होता, तो
पॉइंट P जो कि यहां से लेट अस से इस डिस्टेंस पे है, कितना दूरी है, AP लिखते हैं ना, आर क्यों लिखे AP। तो पॉइंट P पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कितना होता, आंसर है ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस डिस्टेंस AP। फील्ड की डायरेक्शन क्या होती पॉइंट P पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इसी वेक्टर AP की डायरेक्शन में, ऐसा रेडियल। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की बातों को हम इकट्ठा ऐसे लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ρ/3 एप्सिलॉन नॉट वेक्टर AB के बराबर है, AP के बराबर है। ρ/3 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स वेक्टर AP के बराबर है। ये A ये P, इसी डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे ऐसे, और उसका मैग्नीट्यूड ये है, कितना मैग्नीट्यूड है, ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस AP। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, राइट। दूसरा, सिर्फ ये निगेटिव चार्ज अगर होता, सिर्फ ये वाला निगेटिव चार्ज होता और कहीं कोई चार्ज नहीं होता, तो फिर इस पॉइंट P पे फील्ड कैसे लिखते, तो भाई निगेटिव चार्ज की वजह से यहां जो फील्ड होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर होगा। फॉर्मूला तो यही लगेगा, ρ/3 एप्सिलॉन नॉट r। तो यहां से इसकी दूरी, ये इस डायग्राम को देखिए, B से पॉइंट P की दूरी BP के बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज की वजह से P से B की तरफ है, तो हम इसे वेक्टर फॉर्म में निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं ρ/3 एप्सिलॉन नॉट PB। जस्ट ये इंडिकेट करने के लिए कि वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, हमने इसको लिखा है वेक्टर PB। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो ρ इंटू PB/3 एप्सिलॉन नॉट, ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू r, यही तो लिखा है। डायरेक्शन इज टुवर्ड्स PB, तो वेक्टर PB। अब इन दोनों को ऐड कर देना है हमें, तो हमें पॉइंट P पे रिजल्टेंट फील्ड मिल जाएगा। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ρ/3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, वेक्टर AP प्लस PB, वेक्टर AP प्लस PB, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि दिस इज इक्वल टू वेक्टर AB, this is equal to vector AB. So this plus this vector is actually equal to vector AB. So the resultant electric field at point P is given by ρ/3 epsilon naught into vector AB, ρ/3 epsilon naught into vector AB. Vector AB can be written as vector L, just लिखने में आसानी के लिए। L is distance between the centers of the two spherical regions. Therefore, the electric field is ρ/3 epsilon naught L. The important thing is, this electric field does not depend on position of point P, it is independent of position of point P inside the cavity, and the electric field is directed parallel to this vector L. L is a vector from center of the bigger sphere to the center of the smaller sphere. Therefore, you conclude that electric field in this entire cavity region is uniform, it has got same magnitude at all points inside the cavity, and it has got same direction as well, and the direction is parallel to the vector L, that is line joining the centers of the two sphere. So this is a common result, I guess, long time back, I won't say some time back, long time back, there was a question in IIT JEE, the then IIT JEE, nowadays you call it JEE Advanced, which just simply asked whether the field is uniform or not. So this question has already been asked, but okay, I hope you have understood why the field is uniform, why its value is ρ/3 epsilon naught L. Now let us slightly extrapolate this thing actually. What I want you to tell me now is, if this is the cavity region, if this is the system that is given to you, this is the system given to you, you have understood how to write electric field at point P inside the cavity. Now, how will you write electric field at such a point? Point that is inside the charge region. The question can be framed in a difficult language. The question could be framed like this. Somebody asks you to find electric field at this point. The same question, charge is not inside this cavity, this is the cavity. This is the cavity region, B is the center of the cavity. Charge is present here only. And language of the question goes like this, that from the center of the bigger sphere, center is A, from the center of the bigger sphere at a position vector r, there is a point P1. How will you write electric field at point P1? P1 is inside the charge region, somewhere inside the charge region. How will you write electric field at point P1 in terms of rho, charge density rho,
this vector r and this vector l. So you have to express your answer in terms of r, l and rho. I am sorry कि यहाँ पे आंसर ऑलरेडी लिख दिया गया है, भूल गया एनिमेशन डालना मैं, पर मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप रुक करके ट्राई कर लीजिए। आंसर के आगे मैं खड़े हो गया हूँ कि आप देख ना सकें। तो आप सभी लोग जरा खुद से ट्राई कीजिए, एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए कि ऐसे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रो, एल और आर के टर्म्स में आप कैसे लिखेंगे। जरूर ट्राई करना बच्चा। फिर से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही चलेगा, वही चलेगा। पहले हम मान लेते हैं कि पूरे स्फीयर में कोई कैविटी वैविटी नहीं है, हर जगह प्लस रो कूलम चार्ज डेंसिटी है। तो यहां से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे लिख सकते हैं, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर इटसेल्फ। नाउ ये जो इलाका है जहां कैविटी है, कैविटी वी आर जीरो चार्ज, वी आर इंटरप्रेटिंग एज प्लस रो प्लस माइनस रो, प्लस रो प्लस माइनस रो, दैट मेक्स इट जीरो। तो प्लस रो तो हर जगह हमने मान के यहाँ पे फील्ड लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस रो भी मान लो इतनी दूर में, जिससे कि इतने दूर का चार्ज जीरो हो जाए। अगर यहाँ माइनस रो चार्ज होता तो इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड कैसे लिखोगे? तो अगर ऐसा सिचुएशन दिया हो तुम्हें कि ये माइनस रो कूलम पर क्यूबिक मीटर के चार्ज वाला स्फीयर है और यहाँ से सर्टेन डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, तो आउटसाइड पॉइंट हो गया, isn't it? अच्छा, एक और चीज दिया हुआ है, दिस रेडियस ऑफ दिस कैविटी इज बी। आई एम सो सॉरी, द रेडियस ऑफ दिस कैविटी इज बी, इट इज ऑल्सो गिवन टू यू, रेडियस ऑफ द कैविटी इज बी। ओके, सो फॉर ऑल सच क्वेश्चंस यू नो हाउ टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड। You can assume that this entire spherical charge is located as a point charge at the center. You can assume that this entire negative charge is located at the center as a point charge, and because of this point charge you can write the field here. This point is outside this cavity region. Cavity region means plus rho plus minus rho. तो plus rho का असर तो पहले ही लिख दिया, जब मैंने कहा कि पूरे में plus rho है ऐसा सोचो, उसकी वजह से फील्ड लिख दिया। अब इतनी दूर में माइनस रो है, तो माइनस रो वाले इस स्फीयर के बाहर में पॉइंट पी है, तो सिंपली द फील्ड इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, वेयर क्यू इज द टोटल चार्ज इनसाइड दैट स्फीयर। सो यूजिंग दैट वी विल राइट फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय बी पी वन होल स्क्वायर। बी पी इज द डिस्टेंस आर स्क्वायर, क्यू इज द टोटल चार्ज इन द कैविटी, एंड दिस फील्ड विल बी इन द वेक्टर डायरेक्शन ऑफ, कुछ गलत लिखा है ना, BP1, थोड़ा सा गलत लिख दिया, BP1, इट शुड बी P1B। क्यों भाई? क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज स्फीयर है। अगर ये निगेटिवली चार्ज स्फीयर है तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, थोड़ा गलत लिखा है, देखिएगा ध्यान से, ये P1B होना चाहिए था, या इसको रहने देते हैं BP1। हाँ ठीक ही लिखा है, आई एम सो सॉरी, इसको BP1 रहने दीजिए, चार्ज को निगेटिव लिख देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसको BP1 रहने दीजिए, हम चार्ज को निगेटिव लिख देंगे, एक ही बात है। ये जो Q है ना, दिस इज निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव लिखेंगे चार्ज को निगेटिव साइन के साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट टू BP1 हो जाएगा, दैट मीन्स P1 से B की तरफ हो जाएगा, तो ठीक है वो। एंड BP1 वेक्टर कैन बी रिटन एज वेक्टर R माइनस वेक्टर L। अगेन यूजिंग ट्रायंगल रूल वी कैन राइट R माइनस L एज BP1, या इसको आप में से अधिकांश लोग ऐसे देख सकते हैं, वेक्टर L प्लस BP1 is vector R. This is triangle rule. So BP1 is R minus L. So BP1 can be written as R minus L. Q is negative charge inside sphere of radius B. So we will put it with negative sign. Volume of the sphere into rho. तो यहाँ Q को with negative sign रख दीजिए, तो ऑटोमेटिकली डायरेक्शन जो है वो P1B की तरफ हो जाएगा। ओके, सो फील्ड ड्यू टू निगेटिवली चार्ज region of radius B will be given by 1/4 pi epsilon naught. In place of Q you will substitute this, and in place of BP1 you should write R minus L. So R minus L ka mod cube, because that is simply the distance, and this is vector BP1, so R minus L, vector R minus L. So I can put it like this, right? So this is how you can write the field at point P1 due to negatively charged sphere. Now the resultant field will be this field due to positive charge in the entire region plus field due to negative charge. We will do the vector addition, and when you do the vector addition, just add them. You can write it like this.
you can write it like this, rho by 3 epsilon naught has been taken as common, r minus of this whole thing. तो ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है जिसमें एक्सप्रेशन ए बी सी डी इस तरीके से लिखे हों. तो इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी. द ओनली थिंग इज हाउ विल यू एक्सप्रेस एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ गिवन वेक्टर आर एंड एल. सो यू जस्ट नीड टू नो that using triangle rule I can write BP1 in terms of R and L. So you have to take care of that. Now please look at this question again. Please look at this question again. Let us have a look at this question again. What will our answer differ if this cavity is moved to some other position? Will our answer differ if I say that this cavity is exactly here? The answer is no. The answer will remain same. The magnitude of field will differ because the electric field strength will depend on this L, but formula will not change. Okay. Now we have understood this question as superposition of two types of charges, positive and negative. So this logic will remain valid even if this smaller sphere is not exactly inside the larger sphere. What I mean to say is, this is a sphere having charge plus rho, and imagine there is another sphere having charge minus rho. They are overlapping to some extent. ऐसे ही तो था, ये लाल वाला माइनस रो, ब्लू वाला प्लस रो. लाल वाला बहुत छोटा था, पूरी तरह अंदर समा गया. ये पूरी तरह अंदर नहीं समाया है, ऐसा है. तो भी हमारी एनालिसिस बदल जाएगी क्या? ये कैविटी रीजन हो गया. अगर आप ध्यान से देखें तो प्लस रो और माइनस रो मिलकर के इस रीजन में कोई चार्ज नहीं रहा. यहां पे जो चार्ज है वो जीरो हो गया. तो अगर यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो अभी भी तो हमारा आंसर वही रहेगा. हाउ डज इट चेंज? इट डज नॉट चेंज एक्चुअली, क्योंकि हम प्लस रो और माइनस रो का सुपर पोजिशन मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. तो ये माइनस रो वाला स्फीयर अगर हम पूरी तरह से अंदर कर दें तो हमें कैविटी दिखने लगेगा. ठीक है, लेकिन अभी ऐसा बाहर है तो हमें इस रीजन में कैविटी दिखेगा. पर ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है यहाँ पे अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी. उसका फॉर्मूला वही होगा जो तुमने पढ़ा है. उसका फॉर्मूला वही होगा जो तुमने पढ़ा है, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर ए बी. समझ रहे हो बात को? तो इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी. अब ये एक देखिए, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके बनाया गया बड़ा ही कठिन सा सवाल है, नो डाउट. जहां तक मुझे याद आता है इरोडोव में है. थिंक ऑफ टू स्फेरिकल रीजन्स ऑफ रेडियस आर. यहाँ ऑलरेडी हिंट लिख दिया है, इसी फॉर्म में क्वेश्चन नहीं है, वहां शायद थोड़ा डिफरेंट होगा. Think of two spherical regions of radius r each. Think that there are two spherical regions of radius r each, having their centers on z axis at a small separation L. दो spherical region है, एक का सेंटर z axis पे यहाँ है, दूसरा स्फीयर भी सेम साइज का है, उसका सेंटर भी z axis पे है, पर उसका सेंटर थोड़ा सा नीचे में है. मतलब जस्ट ऐसे बनाना है, जस्ट उतना ही बड़ा स्फीयर थोड़ा नीचे में. ये ड्राइंग में बना हुआ है, देखिए. ऊपर वाले स्फीयर का सेंटर यहाँ है, दूसरे वाले का यहाँ है, एट ए स्मॉल सेपरेशन. दिस डिस्टेंस O1 O2 इज L एंड चार्ज डेंसिटीज इन दीज टू स्फीयर्स आर प्लस रो एंड माइनस रो, so that this charge distribution is nearly equivalent to a charge distributed on the surface of a spherical shell having surface charge density falana dhimkara. Now this is a very strange question in the first appearance. क्वेश्चन कह रहा है कि एक फुटबॉल इमेजिन कीजिए, एक स्फेरिकल सेल इमेजिन कीजिए, और ऐसा सोचिए कि उसका एक डायमीटर ये है, और इस डायमीटर के रेस्पेक्ट में हम ये एंगल थीटा ले लेते हैं. तो इस फुटबॉल के सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये जो चार्ज डेंसिटी है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है. एक ऐसा फुटबॉल इमेजिन कीजिए जिसके सरफेस पे चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, और चार्ज की डेंसिटी थीटा के साथ कैसे बदल रही है? तो आंसर है थीटा के साथ वो कुछ ऐसी बदल रही है, सम कांस्टेंट इनटू कॉस थीटा. एक ऐसा फुटबॉल इमेजिन कीजिए जिसके सरफेस पे चार्ज की डेंसिटी थीटा के साथ बदल रही है, इस पिकुलियर तरीके से बदल रही है.
तो ये क्या पढ़ाने लगे आप? अभी तो कुछ और बोल रहे थे, अब क्या बोल रहे हैं? यही क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा फुटबॉल कैसे इमेजिन किया जा सकता है, इसका एक तरीका सिखाया जा रहा है आपको। ऐसा फुटबॉल इमेजिन करने का तरीका है कि एक स्फीयर इमेजिन करो जिसके पूरे वॉल्यूम में प्लस रो चार्ज है, उससे ठीक थोड़ा सा नीचे एक और स्फीयर इमेजिन करो जिसमें माइनस रो कूलम पर क्यूबिक मीटर चार्ज। दो स्फीयर इमेजिन करो, प्लस रो माइनस रो चार्ज डेंसिटी वाले, दोनों के सेंटर थोड़े से शिफ्टेड है। तो सोच के देखो, जो ओवरलैपिंग रीजन है जहां पे दोनों स्फीयर ओवरलैप हो रहे हैं, यहां कोई चार्ज होगा क्या? नहीं, यहां प्लस रो माइनस रो मिलके चार्ज जीरो हो गया, वहां कोई चार्ज नहीं। चार्ज कहां दिखेगा? चार्ज बस यहां ऐसे सरफेस पे दिखेगा, ऐसे यहां प्लस रो एक्सपोज हो जाएगा, और ये माइनस रो वाला स्फीयर थोड़ा नीचे किया है तो उस पर जो माइनस रो चार्ज है वो यहां दिखेगा। तो बहुत थोड़ा सा शिफ्ट किया, ऐसे सोचो। तो जो ओवरलैपिंग रीजन है, जो मेजर रीजन है, वो तो ओवरलैपिंग रीजन है, वहां चार्ज की डेंसिटी तो जीरो है, बस ऊपर 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 थोड़ा चार्ज दिखेगा। तो ये जो ऊपर 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 थोड़ा चार्ज दिख रहा है, मोटा मोटी देखेंगे तो ऐसे दिखेगा जैसे एक स्फेरिकल शेल के सरफेस पे चार्ज है। तो हमें ये साबित करना है कि अगर हम सच में एक पूरे सॉलिड वॉल्यूम जिसमें चार्ज डेंसिटी रो है और दूसरा सॉलिड वॉल्यूम जिसमें चार्ज डेंसिटी माइनस रो है, दोनों को परफेक्टली ओवरलैप कर दें तो कहीं कोई चार्ज नहीं है। अब दूसरे वाले को थोड़ा नीचे किया तो ये जो सरफेस पे चार्ज आ गया, ये चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बेसिकली इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। हम ऐसा सोच सकते हैं कि एक फुटबॉल के सरफेस पे चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा नॉट कॉस थीटा है, ये सिचुएशन और ये स्फीयर को शिफ्ट करने से बनी सिचुएशन दोनों इक्विवेलेंट है, ऐसा हमें दिखाना है, ऐसा हमें करके दिखाना है। तो ये देखिए, मैंने दोनों स्फीयर को थोड़ा शिफ्ट करके बना दिया। मान लो ऊपर वाला स्फीयर पॉजिटिव था, ये कॉमन डायमीटर है ना, ऊपर वाले स्फीयर का सेंटर ये मान लो, ए भाई ऊपर वाला स्फीयर पॉजिटिव था तो यहां तुम्हें पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी। नीचे वाला स्फीयर निगेटिव है तो यहां निगेटिव दिखेगा। क्यों नहीं होगी चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म? क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं कि यहां मोटाई ज्यादा है, यहां पे मोटाई कम है, यहां बहुत कम और यहां तो जीरो है। तो हम ऐसे गेस मार सकते हैं कि यहां तो एकदम परफेक्ट ओवरलैपिंग है, कोई चार्ज नहीं है इस जगह पे, और सबसे ज्यादा चार्ज की डेंसिटी यहां पे होगी। तो सिग्मा नॉट कॉस थीटा, उसकी खुशबू तो आ ही रही है, ऑलरेडी आ रही है, देखिए ना भाई आप, यहां पे मोटाई सबसे ज्यादा है प्लस रो वाले की, तो यहां खूब चार्ज दिखेगा। और जब थीटा 90 होगा यहां तो जस्ट एक स्फीयर ऐसे था, दूसरा इसी के ऊपर था, उसको थोड़ा नीचे खिसका दिया, तो भाई यहाँ पे तो इस पूरे रीजन में तो कोई चार्ज है नहीं, यहाँ तो चार्ज की डेंसिटी जीरो दिखेगी, ऐसे ही दिख रहा है, थीटा 90 पे जीरो दिखेगा। एक मोटी बात। आइए, तो आई होप कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये पहले वाले ऊपर वाले स्फीयर का सेंटर है, ये मान लेते हैं, अब ड्राइंग साफ बनाने के लिए यहां दिखा देते हैं दूसरे वाले का, ये सेंटर है। अब किसी एंगुलर पोजीशन थीटा पे ये जो चार्ज की लेयर है उसकी थिकनेस कितनी है सोचने की कोशिश करते हैं। ये O, इस पॉइंट का नाम रख रहा हूं B, ये पॉइंट B, OB कितना है? रेडियस के बराबर। ओरिजिनल स्फीयर वहीं पे था, दूसरा स्फीयर उसके ठीक नीचे, O2B कितना है? रेडियस से बड़ा है। एक्चुअली मैं अगर इस पॉइंट का नाम A रख दूं तो O2A रेडियस के बराबर है। ये दूसरा वाला स्फीयर है, ये दूसरा वाला स्फीयर है, ये तो ये उसका सेंटर है। O2A जो है वो रेडियस के बराबर है, इजंट इट? अब ये ड्राइंग थोड़ा गंदा हो गया इसलिए मैं यहां पे साफ साफ बना रहा हूं, देखिए ध्यान से। O1B, O2B, ये R है,
लेकिन ये r से बड़ा है। ऐसे समझिए, ये बाहर वाला स्फीयर है, ये अंदर वाला स्फीयर है, ये अंदर ये बाहर, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। ऐसा देखिए, तो ये डिस्टेंस भी r है और ये डिस्टेंस भी r है। ठीक, वहां पे थिकनेस कितनी है? थिकनेस AB के बराबर है। थिकनेस कितनी है यहां पे चार्ज की? ये चार्ज है जो मुझे यहां पे दिख रहा है। तो ये जो चार्ज की लेयर है, इसकी थिकनेस कितनी है? AB के बराबर है। AB कितना है ये समझने के लिए आप यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ये ध्यान देना बच्चों की, ये एंगल को हम थीटा बोल रहे हैं, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा ही है, क्योंकि O1 से O2 जस्ट नीचे है, उसकी चिंता नहीं करना, वो भी थीटा ही है, ये थीटा है। और O1 O2 के बीच की दूरी ये L गिवन है, ये O1 से O2 की दूरी L गिवन है। तो ध्यान से देखो, अगर ये एंगल थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, ये हाइपोटेनियस है, ये वाली जो लेंथ है इसका नाम रख देता हूं M, तो O2M जो है ये L cos थीटा होगा, O2M की वैल्यू L cos थीटा होगी, यही लगभग AB के बराबर है। ठीक से देखो, क्यों? फिर से देखना, O1 से B तक R है, ये रंग देता हूं, बिल्कुल नाराज मत हो, ब्लू रंग से रंग देता हूं, ये लेंथ R है। ठीक, अब यहां से चले तो यहां तक भी R है, तो एक्चुअली में O1B और O2B की जो लंबाई में अंतर है, यही थिकनेस है, ये वाली चीज। तो यहां से यहां की लाइन और यहां से यहां की लाइन की लंबाई में अंतर, ऐसा वेव ऑप्टिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन में आप करते हो। ये दो पॉइंट सोर्स हैं और ये बहुत दूर स्क्रीन पे एक पॉइंट है, तो ये लेंथ और ये लेंथ में अंतर कितना है? तो यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, ये डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि मोटा मोटी O1 से लेके B तक और M से लेके B तक तो सेम लेंथ है, तो दोनों O1 से B और O2 से B में लंबाई में अंतर जो है L cos थीटा, यही एक्चुअली ये होगा। फिर से समझिएगा, यहां से यहां तक R है, ये भी ये R है, तो भैया ये नीला लंबाई और ये नीला लंबाई तो बराबर हो गए, ये जो अंतर है किसके बराबर है? तो बेसिकली इस लाइन में से इस लाइन की लेंथ को हटा दीजिए, इस लाइन में से R को हटा दीजिए, तो ये बच गया। ठीक है, सो दिस इज L cos थीटा। तो यहां पे जो थिकनेस है चार्ज के लेयर की, वो है L cos थीटा। अब यहां पे अगर आप एक यूनिट एरिया इमेजिन करें सरफेस पे, जस्ट एक यूनिट एरिया इमेजिन करें अगर आप सरफेस पे, यहां पे अगर आप एक यूनिट एरिया इमेजिन करें सरफेस पे, देखिए यहां पे यूनिट एरिया इमेजिन करें, यूनिट एरिया सरफेस पे, एरिया 1, ओफो, एरिया 1, थिकनेस अभी आपने निकाला L cos थीटा, तो जो यूनिट एरिया, अगर ये एरिया 1 है सरफेस पे इनटू थिकनेस, ये वॉल्यूम हो गया, उस जगह पे चार्ज के लेयर की वॉल्यूम हो गई, और यूनिट वॉल्यूम में चार्ज है रो। तो यहां चार्ज ऑन यूनिट एरिया जैसे कपड़ा है, तो कपड़े की यूनिट एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कपड़े की वॉल्यूम हो गई। तो चार्ज जो है वो कपड़े की तरह है, बहुत थिन, यूनिट एरिया इनटू थिकनेस, थिकनेस कितना निकाला? L cos थीटा। वो वॉल्यूम ऑफ चार्ज हो गया, उसको रो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यूनिट एरिया में चार्ज प्रेजेंट हो गया, isn't it? So this is what we are calling as sigma. तो इसी को हम लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा, जहां रो इंटू एल इज सिग्मा नॉट। देयरफॉर ये जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हमें बताया गया है कि एक फुटबॉल के सरफेस पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दिस कैन बी रियलाइज्ड बाय हैविंग टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर्स, वन हैविंग चार्ज डेंसिटी प्लस रो, अनदर हैविंग चार्ज डेंसिटी माइनस रो, placed so that their centers are slightly shifted. In such case, we will see a surface charge, and surface density of that charge is going to be of this form. तो अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि एक फुटबॉल के सरफेस पे चार्ज डेंसिटी ऐसे बदल रही है, तो बताओ कि हाँ,
राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल सेल हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस एंड दैट। अब क्वेश्चन कहता है कि ऐसा एक फुटबॉल है, इसके सरफेस पे चार्ज डेंसिटी ये है, तो बताओ इस फुटबॉल के अंदर सेंटर से r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, कैसे लिखेंगे? ये क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़ के चला जाऊं? छोड़ के ही जा रहा हूं, खुद सोचिए कैसे लिखेंगे। साथ में ये भी सोचिए कि इस जेड एक्सिस के ऊपर अगर यहाँ से बहुत बड़े डिस्टेंस r पे यहाँ फील्ड लिखने को कहूँ तो कैसे लिखोगे? थोड़ा सा डाइपोल सोच लेना, बात समझ में आ जाएगी। एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर आउटसाइड पॉइंट के लिए सेंटर पर रखे पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड लिखने के लिए, पोटेंशियल लिखने के लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है जो उसके सेंटर पे रखा है। पूरे स्फीयर को हटा के आप एक पॉइंट चार्ज इमेजिन कर सकते हो। तो ये प्लस चार्ज वाला जो स्फीयर है इसको हटा के आप एक पॉइंट चार्ज O1 पे मान लो, माइनस चार्ज वाला जो स्फीयर है उसको हटा के एक पॉइंट चार्ज O2 पे मान लो, तो एक डाइपोल नहीं बन गया? बन गया। पर ये डाइपोल आप इसको मान सकते हो ओनली फॉर आउटसाइड पॉइंट। इनसाइड पॉइंट पे क्या होगा मुझे लगता है उसका आंसर हम ऑलरेडी दे चुके हैं, आप खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में फिर कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स, नए टिप्स और नए ट्रिक्स के साथ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।